reads in triangle ABC, right angled at B. See, the right angle is at B. Mark that point carefully. Right angled at B. Tan A is equal to 1 by root 3. Find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C, and cos A into cos C minus sin A into sin C. I'll tell you a very simple method of solving this problem. इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ करेंगे. देखिए आपको क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 दिया है. tan A का मतलब है आपका एंगल यहाँ पर है, आप यहाँ पर स्थित है, आप यहाँ से देख रहे हो, आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो राइट एंगल के सामने वाला साइड होगा हाइपोटेनस, ए के सामने वाला साइड होगा अपोजिट साइड, और ए के साथ वाला साइड होगा एडजेसेंट साइड. ये ठीक से पहले मार्क कर लीजिए. व्हेन यू स्पीक ऑफ tan A, that means you are standing here. From here this is the opposite side, from here this is the hypotenuse, and this is the adjacent side. Now what is given to us? tan A आपको दिया है, tan A यानी टोआ, टोआ यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड आपको दिया है. क्या दिया आपको? टोआ, टोआ यानी अपोजिट साइड आपको दिया है 1, और एडजेसेंट साइड आपको दिया है रूट 3. दिस इज द रेशियो ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड. सो अपोजिट साइड इज 1, adjacent side is this one. Now what I'll do is I'll calculate AC square. AC square is equal to AB square plus BC square. So AB is equal to 1 and BC is equal to root 3 square. So 1 square is 1, root 3 square is 3, that means it is 4. So AC is equal to square root of 4, and square root of 4 is how much? 2. So what I got is hypotenuse is 2. Hypotenuse is 2. Now let us try to solve this problem. I want sin A, cos A, sin A. So what I'll do is, when I am asked to talk about sin A, that means I am standing here. Sin means so means opposite by hypotenuse, opposite by hypotenuse. So here opposite by hypotenuse I have to find out. Opposite by hypotenuse means this is the opposite side and this is the hypotenuse. So sin A means BC by AC. Sin A means BC by AC, and BC by AC is, children, 1 by 2. BC by AC is 1 by 2. Here also wherever sin A is there, I'll write here directly 1 by 2. I need not have to write 2 steps. Here I am writing all the steps in detail. Here I will not do that. Next I want cos A. When I say of cos A means adjacent side by hypotenuse. So this is the adjacent side and this is the hypotenuse. Here adjacent side is root 3 and hypotenuse is 2. So cos A means adjacent side by hypotenuse. That means AB upon AC. AB upon AC. And wherever AB upon AC is there, I'll write root 3 by 2. Root 3 by 2. Now let me come to the next one. I want cos C and sin C. See children, when I talk of C means I have come here at the top. From here if I see, I will find this as opposite side, I will find this as adjacent side, and this of course will not change. That means hypotenuse is not going to change. I already made it clear. Opposite and adjacent sides are interchangeable depending upon the value of theta. तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो ये आपके लिए अपोजिट साइड होगा, ये हाइपोटेनस होगा, या एडजेसेंट साइड होगा. तो यहाँ पर आपको साइन सी की जरूरत है. साइन सी यानी फिर से सो यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट बाय हाइपोटेनस. अपोजिट यानी कौन सा? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब खड़े हैं आप तो आपके लिए अपोजिट साइड ये होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, और एडजेसेंट साइड ये होगा. यानी अपोजिट साइड यानी क्या होगा बच्चों? ये ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों? AC.
तो ए बी कितना दे रखा है आपको, √3। हाइपोटेनस ए सी कितना दे रखा है आपको, 2। तो जहाँ पर भी साइन सी होगा वहाँ पर मैं √3/2 रखूँगा, यानी यहाँ पर भी मैं √3/2 लिखूँगा। डबल स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कॉस सी की जब बात आती है तो कॉस सी, कॉस यानी का, सो का, टोहा का यानी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, और एडजेसेंट साइड कितना दे रखा है यहाँ पर 1, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 2, यानी क्या होगा यहाँ पर BC अपॉन AC, और BC कितना दे रखा है बच्चों 1, हाइपोटेनस कितना है 2, यानी ये होगा इंटू 1/2, यानी साइन ए इंटू कॉस सी। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी कॉस सी है यहाँ कॉस ए की वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, हाउ मच इट इज √3/2। कॉस सी की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, व्हाट इज दैट कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू इज 1/2। तो वैल्यूज हम यहाँ पर भरते चले जाएंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4, √3 × √3 इज 3, 2 × 2 is 4, तो 1 + 3 is 4, 4 / 4 is how much 1। यहाँ पर √3/2 × 2 is 4, √3 × 1 is √3, so √3/4, so √3/4 minus √3/4 we are going to get as 0। तो इस तरह से एक ट्रायंगल में से साइन ए आप निकाल सकते हो, उसी ट्रायंगल में से आप साइन सी भी निकाल सकते हो। अगले प्रॉब्लम की तरफ हम आएंगे। यहाँ पर है PQ + QR = 25 + x, PQ + PR, P इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर है, तो राइट एंगल अगर Q पर है तो PQ कितना दे रखा है आपको, PQ है 5, PQ है 5 सेंटीमीटर, और PR + QR यानी दिस साइड प्लस दिस साइड = 25। तो आपको बताना है साइन P, कॉस P और टैन P। सिंपल है बच्चों, देखिए मैं लास्ट स्टेप फर्स्ट करता हूँ। कैसे, साइन P, कॉस P, टैन P मुझे ढूंढना है। देखिए लास्ट स्टेप मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। आप कहोगे सर ये कैसे मैथ्स टीचर हैं आप, लास्ट स्टेप पहले कर रहे हो। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। मुझे ढूंढना है साइन P, दिस इज राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड है हाइपोटेनस, ये P के सामने वाला साइड हो जाएगा अपोजिट साइड, और P के साथ वाला साइड हो जाएगा एडजेसेंट साइड। सही है बच्चों, आई थिंक यहाँ डाउट नहीं आपको। अपोजिट साइड ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, एडजेसेंट साइड ये होगा। आपको ढूंढना क्या है यहाँ पर, साइन P। साइन P यानी सो का टोआ, सो का यानी अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेनस ये है। सो साइन यानी अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, और अपोजिट साइड है यहाँ पर QR, और आपका हाइपोटेनस है PR। तो अगर मुझे QR की वैल्यू मिल जाए और मुझे PR की वैल्यू मिल जाए तो मेरा साइन P खत्म। लास्ट स्टेप देखिए पहले मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखिए कॉस P, कॉस P की वैल्यू अगर आपको चाहिए, कॉस यानी का यानी क्या, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और एडजेसेंट साइड कौन सा है यहाँ पर PQ, और हाइपोटेनस कौन सा है PR, यानी काश अगर मुझे PQ तो मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा, मगर PR मुझे पता नहीं है। tan P मुझे चाहिए, tan P अगर मुझे चाहिए तो tan P = टोआ यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट। सर अपोजिट साइड तो आपको पता नहीं है, हाँ, और एडजेसेंट साइड पता है, हाँ 5, तो यानी मेरा तो अपोजिट साइड यहाँ पर है QR बाय PQ, QR बाय PQ आप लिख सकते हो। और क्योंकि PQ की वैल्यू मैं जानता हूँ इसलिए मैंने एडवांस में यहाँ पर 5 लिख दिया है। मगर सर प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, यस आई नो दैट। अब यहाँ पर PR + QR आपको 25 दिया है, तो एक काम करेंगे हम, QR को x कहेंगे। अगर मैंने QR को x कहा तो PR + x = 25 हो जाएगा बच्चों, यानी PR = 25 - x होगा। कितना होगा, 25 - x होगा।
अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी क्या 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यानी कितना 5 का स्क्वायर, क्यू आर यानी कितना x का स्क्वायर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25 और x का स्क्वायर है x स्क्वायर। तो ये होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर इज 25, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और फिर ये होगा x का स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर इधर अगर ट्रांसपोज मैं कर दूँ तो वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ बच्चों। सो इसको अगर मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, 625, ये 25 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस 25 हो जाएगा, और ये माइनस 50x को उधर ले जाऊँ तो प्लस 50x हो जाएगा, यानी 600 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू x होगा। तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50 अगर मैं कर दूं तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 12। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस 12 इज हाउ मच, 13। So children, already we are prepared. We are prepared. We know we want what we want. Sin theta चाहिए आपको, opposite by hypotenuse, यानी how much, 12 by 13. Tan theta चाहिए आपको, opposite by adjacent, यानी 12 by 5. Cos theta आपको चाहिए adjacent by hypotenuse, यानी 5 by 13. That's all. तो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट स्टेप कर रखा था। सिर्फ यहाँ पर क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट केवल इतना था, अलजेब्रा का ये सारा पार्ट था। पाइथागोरस थ्योरम अलजेब्रा का पार्ट था, और ये सिंप्लीफिकेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट था। ये सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री का पार्ट था, अलजेब्रा का पार्ट ये था, और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ये था। तो एक प्रॉब्लम के अंदर हमने अलजेब्रा भी किया, ज्योमेट्री भी किया और ट्रिग्नोमेट्री भी किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो।